Hello, everybody. Welcome to iExamB's Legal B. This is Amrita, your law faculty at iExamB. In this video today, we are going to discuss RD examination. Phase 1 results are out. Phase 2 के लिए सब लोग ज़ोरों शोरों से तैयारी कर रहे हैं. So उस examination के लिए कुछ important topics मैं discuss करने वाली हूँ आपके साथ इस वीडियो में. But before we start, don't forget to subscribe to our YouTube channel and stay updated with all such kind of beneficial videos that provide you an insight for your preparation. आपकी अगर कोई क्वेरीज हैं आप हमें डायरेक्टली इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हो या hello@iexambi.com पर ईमेल कर सकते हो एंड ऑल्सो visit our website www.iexambi.com for all the details relating to government exam preparation courses and whatnot. PFRDA examination, we are going to talk about assistant manager legal basically in this video. So those who have qualified phase 1, very big congratulations to all of you, and also those who are preparing for phase 2, all the very best. So in this video we are going to discuss about what is PFRDA actually. आप जिस इंस्टीट्यूशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जिस एग्ज़ाम को देने के लिए आप जा रहे हो, उसके बारे में आपको बेसिक नॉलेज तो होना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअली वो इंस्टीट्यूशन है क्या. कई लोगों ने इस इंस्टीट्यूशन के बारे में पहले कभी सुना भी नहीं होगा until and unless they got to know of this opportunity and they filled the application form. So if you are going for that, you should know what that authority is and what is the act which is regulating that authority. And especially for law officers, for legal officers, you need to know the acts behind it and some of the important topics from it. So यही हम इस वीडियो में आज कवर करने वाले हैं. PFRDA एक्ट के साथ साथ हम लोग IRDA एक्ट भी डिस्कस करेंगे. सो लेट अस सी इन डिटेल कि ये सब क्या है. पहले तो PFRDA का कंसेप्ट समझते हैं. What is PFRDA? From where it has come, you will understand. OASIS. OASIS was an old age social and income security related project. It was actually a national project that was started by the union government. And why this project was undertaken? It was undertaking to examine the policies that were relating to old age income security in India. इंडिया में ओल्ड एज में आपकी इनकम सिक्योरिटी क्या है वंस यू गेट रिटायर्ड. सो दिस इज़ व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट. आप लोग लॉ स्टूडेंट्स हो, लॉ ग्रेजुएट्स हो, आपको पता है वेलफेयर स्टेट कंसेप्ट के बारे में, इजंट इट. सो ये वेलफेयर स्टेट का पार्ट है दैट इज़ प्रोटेक्टेड अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. सो द गवर्नमेंट हैज़ अंडरटेकन दिस प्रोजेक्ट अंडर दैट एंड मेड अ सर्वे कि इंडिया में इसकी क्या पोजीशन है. अकॉर्डिंग टू दैट गवर्नमेंट केम अप विद अ डिसीजन टू रिप्लेस द डिफाइंड बेनिफिट पेंशन सिस्टम with a defined contribution pension system. मतलब आपका contribution किस तरीके से होगा, आपका investment किस तरीके से होगा towards your retirement life through pensions. So this is what is PFRDA concept and from here it has come. PFRDA is the Pension Fund Regulatory Development Authority and it is a central autonomous authority for pension regulation basically. And it works towards the promotion and overall development of pension funds. It is Pension Fund Regulatory and Development Authority. It is a quasi government organization and yes, it is having all three types of powers. It is having executive power, it is having legislative power, judicial powers. तो ये जो powers हैं आप सिमिलर समझ सकते हो लाइक आरबीआई, लाइक सेबी. आरबीआई सेबी के बारे में हम लोगों को काफ़ी कुछ पता होता है. आपने देखा होगा आरबीआई में भी लॉ ऑफिसर के वैकेंसीज होते हैं, सेबी में होते हैं, इसके लिए भी कंडक्ट होते हैं एग्जामिनेशंस. सिमिलरली इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी है जिसका भी एक्ट हमें थोड़ा सा पढ़ना होगा, वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ क्यों इम्पोर्टेंट होगा. एंड इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये सब उनके क्षेत्र में, उनके सेक्टर में काम करने वाले ऑर्गेनाइजेशंस हैं. उसी तरीके से PFRDA भी एक ऑर्गेनाइजेशन है एंड वहाँ की वैकेंसीज के लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट करता है जिस एग्ज़ाम को आप अटेम्प्ट कर रहे हो, दे रहे हो, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट. So you should know the backdrop of that. That's what I have shared with you. It is working currently on the Atal Pension Yojana also and NPS system जो है, NPS Trust की भी वैकेंसी आई थी आपको पता होगा, तो वो भी PFRDA के अंडर ही आता है.
अब PFRDA का जो एक्ट है दैट इज 2013, फ्रॉम दैट व्हाट ऑल टॉपिक्स विल बी important for you, let us understand that now. From exam point of view you have to study, you don't have to do everything in much detail. आपको सब्जेक्ट्स जो दूसरे सब्जेक्ट्स है फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. वैसे ही PFRDA एक्ट में से आप फंड यूटिलाइजेशन का टॉपिक बहुत अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि ये एक्चुअल क्रक्स है एक्ट का, फंड किस तरीके से यूटिलाइज होना चाहिए. देन सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी है, ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा इस एक्ट में से. Then applicability of the act I would say is very important for you, which you should know. Then composition or eligibility and the tenure, everything of the authority and everything that is going to be discussed about the authority in the act itself, its establishment. एक preamble पढ़ के भी आपको काफ़ी आइडिया आ जाता है एक्ट के बारे में. ये सब आपको बेसिक PFRDA एक्ट में से करना होगा अच्छे से. दिस इज़ वॉट यू कैन डू, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट of this act. And now there is paucity of time also, so don't waste much time by going into technical details. Do the substantial parts. Okay, that's why I have shared this with you. आप इस वीडियो को पॉज भी कर सकते हो, या फिर आप इसका स्नैपशॉट ले सकते हो, या सिंपल वे आप इस PPT को डिस्क्रिप्शन में से जाके डाउनलोड कर सकते हो. Next topic is Insurance Regulatory and Development Authority of India. Now, why this authority we are studying over here? Let us understand that first. And for that, I have shared the preamble of the act directly. इससे हमें इस act का purpose समझ, इस authority का purpose समझ में आएगा. This authority, that is Insurance Regulatory and Development Authority of India, has been established for providing प्रोटेक्शन टू द इंटरेस्ट ऑफ होल्डर्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज. इंश्योरेंस पॉलिसीज पता है आपको, जो लोग इंश्योरेंस पॉलिसीज लेते हैं उनके जो होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए या प्रमोट करने के लिए, या उस इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ऑर्डरली ग्रोथ के लिए जो भी मैटर्स हैं उन सबको डील करने के लिए वी हैव दीज पर्टिकुलर एक्ट्स. वी हैव इंश्योरेंस एक्ट, we have Life Insurance Corporation Act, we have General Insurance Business Nationalization Act 1972. So all these acts are linked with this, and now we have Insurance Regulatory and Development Authority of India Act 1999. इस एक्ट में से आपको क्या क्या पढ़ना है पहले मैं आपको वो बता देती हूँ. देन आई विल टेल यू अबाउट द लिंकेज ऑफ दिस एक्ट विद PFRDA. कंपोजिशन एंड टेन्योर यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा अथॉरिटी का. एलिजिबिलिटी इंश्योरेंस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. देन एडवाइजरी कमिटी दैट इज एस्टैब्लिश्ड, इट्स कंपोजिशन. इस एक्ट के अंडर ये अथॉरिटी एस्टैब्लिश हुई है, कैसे एस्टैब्लिश हुई है, उसका कंपोजिशन क्या है, एंड फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड क्या बार्स हैं इस एक्ट के अंडर. ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, 3-4 ही टॉपिक्स हैं जो आपको अच्छे से करने होंगे. Now this is the 1999 act, that is IRDAI. इस अथॉरिटी का एस्टैब्लिशमेंट पहले हुआ था PFRDA से. बट नाउ व्हाट इज हैपनिंग आफ्टर PFRDA हैज़ कम इन 2013, इट इज़ ऑल्सो गोइंग इन टू द सेक्टर ऑफ पेंशन रिलेटिंग टू इंश्योरेंस. इंश्योरेंस के कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो पेंशन से लिंक्ड होते हैं, से रिलेटेड होते हैं. सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस दैट दीज प्रोडक्ट्स are coming under pension also and also under insurance. तो ये कौन रेगुलेट करेगा? IRDAI रेगुलेट करेगा या PFRDA रेगुलेट करेगा? सो ये कुछ क्वेश्चंस है जो चल रहे हैं रिलेटिंग टू डिस्कशन. मतलब इसीलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि PFRDA और IRDAI किस तरीके से रिलेटेड है. इफ़ यू नो दैट देन यू विल अंडरस्टैंड हाउ दिस इज लिंक्ड टू योर एग्जाम. एंड नाउ you know, you have an insight about both the acts, and I am sure that आपको पता है कि आपको कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है from these acts for your exam preparation. So come to iExamB for all such kind of preparation guidance, conceptual clarity. iExamB ने एक concepts पढ़ाएंगे, सबको सिखाएंगे का कैंपेन स्टार्ट किया है that has been scheduled, and legal भी पर इसका शेड्यूल ऑलरेडी एक्टिव है. यू कैन सी इसमें से काफ़ी सारी कंपनीज एक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हो चुके हैं. And now the topic that we are left with is securities law related topics. So you can immediately subscribe and don't miss any of the updates and such kind of concepts. Take benefit of this campaign, take benefit of all the courses available, and prepare 50% faster with iExamB. Thank you so much everybody.